Hi, how are you guys? How's the preparation for UPSC going on? I hope आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे. चलो आज आपको एक चीज सिखाते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक्स. राइट, इकोनॉमिक्स the most important topic both in your GS prelims and your GS mains. You can understand the importance of the subject economics from that what it contributes. Entire GS paper 3 is nothing but economics. Majority, at least 60% of the paper of GS paper 3 is nothing but economics, and every year you can say 10 to 12 questions on an average is reflecting in the GS paper of UPSC prelims examination. Therefore, it is imperative on your part to study this subject in a very systematic manner. And here at Abhigyan, I will be taking you to the domain of economics and making economics not only interesting for you, but also to make economy a part of your life, that it will help you in understanding and in a right decision making. Okay, therefore to understand economics we need to understand what UPSC economics is all about. You see, UPSC has its own syllabus of economics, because if you want to master a subject, you need to understand what it basically consists of. It is not economics which your universities are teaching you. UPSC economics is completely different. They focus on basics plus application part. Therefore, it is prudent that you must be conceptually very strong, so that you can understand the application of different principles of economics in how the economic policies are getting framed and what are their contribution in making the life of Indian people better. Right? You see, UPSC basically focuses on the following aspects. UPSC focuses on mainly following aspects, right? Number 1, fiscal policy. Number 2, monetary policy. Number 3, trade policy. Number 4, national income, concepts of national income. Then number 5th, agriculture. Number 5th, agriculture. Number 6th, understanding of poverty and related issues. Then number 7th, anybody? Unemployment. And number 8,
banking sector. These are the main areas from where the UPSC is mostly asking questions. Right? You see, when I teach, lot of students comes to me and they often ask me this, which books to refer, right? So therefore, here we believe in giving you so much of knowledge in the class itself. When you look or when you refer the book, so you will come to know that out of if a book consists of 300 pages, what are the pages you are going to study, right? So therefore, here we will be working, number one, on creating conceptual clarity in you. Number two, application of those concepts, right? Number third, timely coverage. This is very important. You see how I am going to take you to the journey of economics here at Abhigyan. Number one, we will be working on creating conceptual clarity. Working on your conceptual clarity so that if somebody asks you what is per capita income, what is an infant mortality rate, how bank rate of increase, what impact it is having on the economy, right or wrong. Therefore, we will be introducing you to the concepts clarity. Number third, second, we will be working on the application part, right? Number third, timely coverage of your syllabus of economics in GS. This is very important, right? Then discussing the gist of all the important books in the class, right? Number four, focusing on your answer writing ability. Because you see, you know what happens, a lot of students comes and they said to me, sir, we want to write an answer, give me a question, you want to write an answer. But are you able to write an answer if your concepts are not clear, if you are not able to do interlinkages, if you are not able to apply the concept in the practical life? Will you be able to write a good answer? Therefore, we build up number one, number two, number third, number four, number five, then finally we'll take you to this place, answer writing ability. We will be working on your answer writing ability, ki how to write structured answer in the given time period, right? Okay, I want to ask you a question, ki sir, most of the students ask this question, which books to refer? If you have to refer the books, then what is the use of coming to the class? In class, it is our responsibility to cover all the important topics from the perspective of your examination, and you have to understand and practice those things at your home. This is how things works out actually. Am I right or wrong? And if there is a necessity, then we will be giving you the list of references, list of following books which you have to refer and what to refer in that particular book.
Okay, so therefore we are creating a kind of teaching methodology. We are creating a framework in which you have to work, because we are here, we are committed to convert your hard work into success. Okay, for example, I give you a little hint how we are going to progress in our economy class here in Abhigyan. Okay, okay, I want to give you an example. On what factors economic system depends? Depends on what factors? On what factors economic system depends? Anybody? Can anybody tell? We will not be teaching you that kind of a thing. ये planning commission है, इसका ये rate of that, you can do it from your level. Then why you are coming to the class? We are here to build your concepts, to build a critical mindset, build an objectivity in your thoughts. Now I'm asking a question: how economic system depends on what factors? Tell me. Number one, functioning of marketing system. One of the most important factor is functioning of market system. Functioning of market system. अब पहला सवाल ये उठेगा कि सर ये मार्केट सिस्टम क्या होता है? मैं पूछूंगा आपसे। हम आपको रटवाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे कि व्हाट इज मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम कहते हैं किसको? मार्केट सिस्टम सिंपल, वेयर buyer and seller. बायर माने जिसे सामान खरीदना है, सेलर जो सामान बेचना चाहता है. दैट्स कम्स टुगेदर, जो दोनों यहां पर आते हैं, दैट्स कम्स टुगेदर exchange goods and services, exchange goods and services for a price. राइट, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? मार्केट सिस्टम. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब साहब ये हुआ, एक ऐसी जगह जहां पर खरीदार और खरीदने वाला दोनों वहां पर जाते हैं. वो कोई सामान भी खरीद सकते हैं, कुछ सर्विसेज भी खरीद सकते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पर आपका हमारा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है मुसद्दी लाल. क्या नाम है? मुसद्दी लाल. ठीक है. मुसद्दी लाल कहाँ गया? मुसद्दी लाल गया कहाँ पर? आजादपुर गया. कहाँ गया? लेटस से आजादपुर. आजादपुर गया. आजादपुर पे बहुत सारे लोग आते हैं सामान खरीदने भी और बेचने भी. तो यहां पर उसे एक बंदा मिला, उसका नाम था बंगाली. बंगाली मिला. बंगाली ने क्या किया? बंगाली अपने साथ लेके आया कितने? 20 किलो टमाटर. अब मुसद्दी लाल ने कहा कि सर कि भाई बंगाली, मेरे घर में तो बर्थडे पार्टी है, मेरे को तो 10 किलो टमाटर चाहिए. तो मुसद्दी लाल ने बंगाली से क्या किया? 10 किलो टमाटर खरीद लिए. उसने कहा कितने टमाटर दोगे 10 किलो के? उसने कहा मैं 50 रुपये टमाटर बेचूंगा, 50 रुपये किलो टमाटर. तो 10 किलो टमाटर कितने हो गए? 500 रुपये के हो गए. मुसद्दी लाल ने बंगाली से 500 रुपये के टमाटर खरीद लिए. तो ये क्या हो रहा है? बायर, ये कौन है? बायर. ये कौन है? सेलर. मुसद्दी लाल इज अ बायर and Bengali is a seller. And where these things are taking place? At Ajadpur. Ajadpur is a market. इसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर मार्केट. अब भूलोगे? ऐसे नहीं भूलोगे. अच्छा, फिर मुसद्दी लाल ने कहा भैया ऐसा सुनो, हमरे को हमारे घर बर्थडे पार्टी रही, तो हमको कोई बता ही दो बंगाली कि तुम्हारे घर में तुम किसी को जानते हो जो अच्छा खाना बनाना जानता हो, आलू मटन वटन सब जानता हो बनाना. तो उसने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, हमारे पास है भीकन लाल.
भीकन लाल। बंगाली ने कहा भीकन लाल। भीकन लाल कौन है? भीकन लाल हलवाई है। मुसद्दी लाल ने कहा कि ठीक है मेरी भीकन लाल से बात कराओ। भीकन लाल भी यहीं पर आ गया। भीकन लाल ने कहा भी मैं 500 लोगों का खाना बनाने के 5,000 रुपये लूंगा। मुसद्दी लाल ने कहा 5,000 थोड़े ज़्यादा होते हैं, थोड़ा कम कर लो। सेटलमेंट हुई सेटलमेंट कितने में हुई? 4,000 में। तो मुसद्दी लाल ने भीकन लाल को क्या किया? बुला लिया। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। तो यहां पर तो क्या बेचा जा रहा है? गुड्स। गुड्स माने सामान। क्या बोलते हैं हम गुड्स को? सामान। सर्विसेज यानी कि जो आप काम करते हैं, आपकी जो हुनर है आपका। भीकन लाल का क्या हुनर है? खाना बनाना। तो वो मुसद्दी लाल के यहां जाएगा, खाना बनाएगा और पैसे लेगा। और बंगाली ने क्या किया? बंगाली ने टमाटर किसको बेच दिए? मुसद्दी लाल को। या इसीलिए हमने क्या बोला? मार्केट सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच बायर एंड सेलर कम्स टुगेदर, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस। और ये सारा सेटल किस चीज पर हो रहा था? प्राइस पर हो रहा था। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट सिस्टम। समझ में आई बात? चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं आपकी एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड स्टडी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड स्टडी। हम आपको रटवा नहीं रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि मार्केट सिस्टम। अगर आपसे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मार्केट सिस्टम, इमीडिएटली यू विल टेल सर मार्केट सिस्टम इज नथिंग, इट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर आर कमिंग टुगेदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग सिस्टम, राइट? तो आपने पहली चीज आज क्या सीखी? बायर एंड सेलर कमिंग टुगेदर फॉर द एक्सचेंज ऑफ goods and services in common place at a price। ये क्या बन गया आपका? मार्केट सिस्टम, राइट? अब समझो, यानी कि मैं ये कह सकता हूं यहां से कि इस डेफिनेशन से मेरे पास दो चीजें आ जाती हैं। वो है नंबर 1 कंज्यूमर। क्या वर्ड निकल के आता है? कंज्यूमर, जो कंज्यूम कर रहा है, जिसे चीजें चाहिए। दूसरा प्रोड्यूसर। दूसरा क्या निकल के आ गया? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बंगाली बेवकूफ था? बंगाली टमाटर ही क्यों लेके आया? बंगाली ने ये क्यों नहीं कहा मैं घर से हलवा बना के लाऊंगा और हलवा खिलाऊंगा, हलवा बेचूंगा मुसद्दी लाल को? वो टमाटर इसलिए लाया क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर टमाटर बिकेगा। टमाटर एक स्टेबल इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ। हम सब्जी बनाते हैं, हमें टमाटर चाहिए, हमें सलाद बनाता है, हमें टमाटर चाहिए, राइट और रॉन्ग? हम बहुत तरीके के, अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो टमाटो प्यूरी डलता है उसके अंदर, राइट और रॉन्ग? बोलो। अब यू कैन आस्क योर मदर, शायद ही कोई ऐसी सब्जी होगी जिसमें टमाटर ना डालते हो। ठीक है, तो टमाटर क्या है? एक स्टेबल इंग्रेडिएंट है। तो बंगाली ने क्या कहा कि मुझे किस चीज़ में बेनिफिट है? टमाटर में। तो बंगाली ने क्या किया? टमाटर बनाया। टमाटर, बंगाली क्या हो गया? प्रोड्यूसर, क्योंकि बंगाली ने टमाटर पैदा किया, टमाटर पैदा करके टमाटर की खेती की, टमाटर उगाया, और टमाटर उगा के वो पहुंच गया कहाँ पर? आजादपुर में। वहाँ पे आ गया मुसद्दी लाल। मुसद्दी लाल ने कहा मुझे 10 किलो टमाटर चाहिए। तो मुसद्दी लाल क्या हो गया? कंज्यूमर, क्योंकि क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। और बंगाली क्या हो गया? प्रोड्यूसर, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, ये पैदा कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो यानी कि मार्केट इकोनॉमी के, मार्केट सिस्टम के दो डायनेमिक्स हो गए। मार्केट सिस्टम हैज 2 डायनेमिक्स। Market system has 2 dynamics. कौन कौन से? नंबर 1 कंज्यूमर, नंबर 2 प्रोड्यूसर।
अच्छा, एक बात और समझो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्यों करता है? क्योंकि उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। राइट और रॉन्ग? उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अभी इस चीज को हम लिंक करेंगे एग्रीकल्चर क्राइसिस से, जो एग्रीकल्चर क्राइसिस हो रहे हैं अभी आपके सामने। यू आर वॉचिंग इट अक्रॉस इंडिया, द लॉट ऑफ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। और इंडिया में एमएसपी को लेके वी विल कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स, एमएसपी, राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, दे आर प्रोड्यूसिंग पोटैटो, अनियंस, कॉटन, राइट? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, इंडिया की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे 1 मिनट के अंदर। सुन रहे हो बात को? तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करता है? उसको प्रॉफिट चाहिए। कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। राइट और रॉन्ग? अब तुम समझो, संडे को आलू की सब्जी बना रहे, अब आलू की सब्जी में टमाटर ना डाले तो मजा कैसे आएगा भैया? टमाटर डल जाता है, वो टैंगी टेस्ट आता है, ओहो आलू की सब्जी और पूरी आहा आहा, आत्मा प्रसन्न। राइट और रॉन्ग? तो तुमने टमाटर क्यों खरीदा? सलाद में अगर टमाटर ना हो तो मजा नहीं आएगा यार। राइट और रॉन्ग? अगर तुम पिज़्ज़ा खा रहे हो और पिज़्ज़ा की में वो ना डाला जाए, आपका टमाटो प्यूरी ना जाए, तो इट विल नॉट गिव यू दैट सेटिस्फैक्शन यार। यू विल से समथिंग इज मिसिंग इन दैट। ओके, तो यू आर लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्शन, यू वांट टू हैव दैट, एंड व्हाट प्रोड्यूसर इज लुकिंग फॉर? प्रोड्यूसर इज लुकिंग फॉर प्रॉफिट। अब होता क्या है, प्रोड्यूसर क्या एक्सपेक्ट करता है? दैट एवरी कंज्यूमर, लिखो उसको, प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट every consumer should have, लिखो, every producer should behave, not have, should behave in a rational manner. क्यों भाई? उदाहरण के तौर पर एक सवाल पूछूंगा आपसे, जब प्याज 100 रुपये किलो बिकी, हमें कैसा लगा? हमने कहा नहीं भैया, ये हम प्याज नहीं लेंगे। 100 रुपये किलो प्याज? अरे अभी 4 महीने पहले तो ये 30 रुपये किलो बिक रही थी, आपने इसे 100 रुपये किलो कर दिया। हम 100 रुपये किलो प्याज क्या करेंगे? हमें तो प्याज नहीं चाहिए भैया। तो प्रोड्यूसर क्या सोचता है कि मैं जो प्राइस दे रहा हूं, कंज्यूमर उसको समझे और एक रैशनल बिहेवियर में अप्लाई करे अपने माइंडसेट को। लेकिन हम कंज्यूमर्स हैं, हमको क्या चाहिए? वैल्यू फॉर मनी। हमें क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कब आता है? जब आप वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट खरीदते हैं। भैया आपको पता है प्याज 30 रुपये किलो है और आपने 25 में खरीदोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राइट और रॉन्ग? आपको लगेगा आई डिड अ वेरी गुड बार्गेनिंग, आई सेव्ड माई मनी। बट इफ द सेम अनियन which was priced at 30 rupees per kg 3 months back, and today if you go to the market and buy the same onions, that onions are coming at around 100 rupees per kg, don't you think it will pinch you? Will you not ask the question to the producer ki why you are selling onion so expensively? Why it is so expensive? Why you have increased the rate of onion so exorbitantly? It is pinching my pocket, right? इसीलिए अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, लेटर से यहां पे प्राइस है, दिस इज अ प्राइस, बी केयरफुल, लुक एट दिस। ये डिमांड है, यानी कि क्वांटिटी, राइट? अगर सोचो it is going like this, and if the prices are coming here, अगर प्राइस डिमांड को मैच कर रहे हैं and it is creating an equilibrium, तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये प्राइस एक इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट?
एंड ये कौन है? दिस इज द प्रोड्यूसर, राइट? और here comes the consumer, यानी कि consumer is also happy and the producer. इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमने क्या डिडक्ट किया? कंडीशन नंबर 1, अगर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस. आपने क्या सीखा? इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट? व्हाट यू हैव लर्न? इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर डिमांड, सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड इज इंक्रीज्ड, फिर क्या होगा? और सप्लाई क्या है? सेम ही है, और डिमांड इंक्रीज होगी, तो प्राइस क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ. प्राइस विल इंक्रीज. समझे? ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं तुम्हें. और शुरुआत का, और ये सबको कौन कंट्रोल करता है? मार्केट करती है. एंड यू विल नॉट फाइंड ऑल दिस थिंग्स इन द बुक्स, दैट आई कैन चैलेंज, राइट? देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि प्राइस, राइट और रॉन्ग, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. समझे? दिस इज हाउ. और डिमांड कब बढ़ती है? अगर ये सवाल पूछो तुमसे तो तुम सोचो, डिमांड कब इंक्रीज होती है? व्हेन डिमांड कम्स इनटू द पिक्चर, जब हमारी डिजायर, डिमांड कौन बढ़ाता है? डिजायर, डिजायर एंड, और सोचो, डिजायर फॉर कमोडिटी एंड द एबिलिटी टू गेट इट, ये क्या करते हैं? डिमांड बढ़ा देते हैं, राइट? इसीलिए मार्केट, अब अगेन मार्केट पे आ जाएंगे. देयरफॉर मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल, राइट इट डाउन, मार्केट कंसिस्ट ऑफ दोज पीपल, market consists of those people who can demand goods and services, who can demand goods and services, who can demand goods and services. अब इसको एक एग्जांपल देके समझाता हूं तुम्हें. मैंने आज सुबह मुसद्दी लाल को देखा. मुसद्दी लाल was wearing a jeans of Puma, sorry, jeans of Levi's and shoes of Puma. अब बताओ, आज तुम जब बाजार में घूमने निकलते हो तो तुमको प्यूमा दिखता है, तुमको एडिडास दिखता है, तुमको नाइकी दिखता है, तुमको स्केचर्स दिखता है, सारे ब्रांड्स दिखते हैं शूज़ के, दिखते हैं ना. लेकिन अगर आज से हम 25 साल पहले चले जाएं, आस्क योर पेरेंट्स, उस टाइम कौन से ब्रांड होते थे? बाटा, एक्शन, लखानी, लिबर्टी, हाँ या ना? अब ये सवाल अपने आप से पूछो कि ये भसड़ हुई क्या? कि यार ये पहले लखानी, लिबर्टी, एक्शन, बाटा थे और आज इंपोर्टेड ब्रांड्स आ गए, नाइकी, एडिडास एंड योर प्यूमा, स्केचर्स. ये क्या हो रहा है? क्योंकि उस टाइम हमारी डिमांड बाटा थी, आज हमारी डिमांड बढ़ गई है, हमारी एस्पिरेशंस बढ़ गई हैं. वी आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस. इंडिया हैज अ मोर एम्पावर्ड मिडिल क्लास. तो आज हमें क्या चाहिए? आज हमारा मन क्या करता है? हम क्या पहनेंगे? वी विल वेयर लुइस फिलिपी, ज़ोडिएक, टॉमी हिलफिगर, हाँ या ना? बिकॉज मार्केट इज ड्रिवन बाय डिमांड, एम आई राइट और रॉन्ग, एंड सर्विसेज, राइट? चलो, ओके. Therefore
हम क्या बोल सकते हैं? To be a part of market, you need to have a demand as well as the ability to buy that here. Okay? ठीक है, डन. अच्छा, एक चीज और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हियर. अब यहीं से तुम्हें एक और चीज समझाएंगे, तुम्हें मजा आ जाएगा. ये तुम्हें रिलेशनशिप बताया, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, मार्केट सिस्टम, एंड हाउ मच टाइम इट टुक? जस्ट 30 मिनट्स. आज के बाद कभी भूलोगे तुम? अगर क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी के अंदर, critically discuss the functioning of market with respect to demand and supply. Can you answer it or not? You can answer this question. This is the beauty of being here at Abhigyan. We will teach you what others cannot and will give you those concepts which others cannot. And this is my challenge. Number one. Number two, we are committed to our values. Whatever we commit to you, we will deliver you here. Okay? Number third, we will complete our syllabus on time, and I am looking forward to come you, meet us and have an interaction with us. And remember one thing, your success is directly proportional to my success. My success involves making you successful. Thank you very much for listening me, for being with me. Thanks a lot and wish you good luck.